Hello, viewers. Welcome back to English Only Zone. I hope you are doing good. Your preparation for board exam must be going on quite well. So, this video of proposal writing is solely dedicated to the students of ISC board classes 11th and 12th. The question of proposal writing is the second question in the English language paper, and this contains 10 marks. For these 10 marks, you have to write this proposal in about 150 words, and you know very well that in ISC board, you cannot exceed the word limit. And this is the question which will help you to gain 10 out of 10 marks. मीन्स आप अपने 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं अगर आप प्रपोजल ठीक से लिख देते हैं तो. It is so because you don't have to frame many sentences. And after reaching class 12th, you must be sure enough for yourself that you can write at least 150 words without making any grammatical mistake. So here we go. Let us understand how can we gain 10 out of 10 marks in proposal writing. See, there are 4 main points on which you have to focus. First is the heading, or you can say the title. After this, the second part is introduction, where you have to introduce that why are you writing that proposal. After this, you have to write objectives. Objectives state what benefits the proposal will bring. After objectives, you have to state 4 list of measures. 4 points in the list of measures are to be written, and these are the steps which you will be following to execute the plan which is given to you in the question. I've noted some important points for each of the headline. Focus on these points so that you may not make any silly mistakes in your exam. लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हम प्रपोजल लिखते क्यों हैं. प्रपोजल एक प्लान ऑफ एक्शंस होता है जो ये बताता है कि अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अपने स्कूल में एनसीसी विंग स्टार्ट करवानी है तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे और उससे आपको मीन्स स्टूडेंट्स को और आपके स्कूल को क्या क्या बेनिफिट होगा. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड दैट योर प्रपोजल शुड बी बेनिफिशियरी फॉर द स्कूल ऑल्सो. Then only it will be taken into consideration by the school authorities. Okay, now let's not make the video lengthy because you are yourself short of time to revise your subjects. So let's begin. First point is the heading. The heading should include the topic clearly. I have written some important points here with each heading so that you can keep these points in your mind before you are going to write your exam. So the heading should include the topic clearly. The word proposal must be written. Means if you're getting the question for starting the NCC wing, you have to write in the heading, the title part, proposal for starting an NCC wing in school. It should not include many words. Maximum 5 to 6 or max to max you can write 7 words. For example, like in newspaper reports you write only 5 to 6 words ना, तो बस इतने ही वर्ड्स आपको इसकी हेडिंग में भी लिखने हैं क्योंकि हेडिंग जितनी बड़ी होगी लोगों का उस टॉपिक को पढ़ने का मन नहीं करेगा. तो इट शुड बी प्रिसाइज एंड विद इन द वर्ड लिमिट. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका पूरा प्रपोजल 150 वर्ड्स का होना चाहिए और ये हेडिंग वाले वर्ड्स उसमें काउंट होते हैं. 150 वर्ड्स में ये हेडिंग वाले वर्ड्स भी काउंट होंगे. सो कीप इट शॉर्ट, 5 to 6 वर्ड्स. आई हैव रिटन इट कैन बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स टू. कैन की जगह अगर आप इसको शुड कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा बिकॉज देन ओनली यू कैन हाईलाइट कि आप ये हेडिंग लिख रहे हैं, ये टाइटल लिख रहे हैं. इट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स. और अगर आप उन कैपिटल लेटर्स को बोल्ड भी कर सकते हो तो यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन इट. इट्स अप टू यू. सो जस्ट differentiate the heading from introduction and rest of the points. Clear? Let's move on to the introduction part. अब इंट्रोडक्शन में हम वो टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं दैट वाई आर वी राइटिंग दिस प्रपोजल. इट शुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड इंक्लूड वाई वी आर राइटिंग द प्रपोजल. इट हैज़ टू बी रिटन इन पैराग्राफ फॉर्म. सम स्टूडेंट्स आर इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन इन पॉइंट्स. देखो इसमें 2 पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए. आप इंट्रोडक्शन में अपने टू पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे बट दोज 2 पॉइंट्स शुड बी इन पैराग्राफ फॉर्म
not in point wise, not in bullet form. Clear? Should include words to foster or develop the interest of students or to inculcate the habit of this and this we propose to start this club. ठीक है, ये वर्ड्स आपके उसमें इंक्लूड होने चाहिए इंट्रोडक्शन में. जैसे अगर एनसीसी विंग का ही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज वी प्रपोज टू स्टार्ट एन एनसीसी विंग इन द स्कूल कैंपस, और टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ सर्विंग द सोसाइटी वी प्रपोज टू स्टार्ट एन एनसीसी विंग इन द स्कूल कैंपस. दिस कैन बी द इंट्रोडक्शन. और मैंने यहाँ पर अभी आपको एक ही पॉइंट दिया है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें बस एक ही पॉइंट बताया इंट्रोडक्शन का. यू हैव टू इंक्लूड 2 points, कीप इट इन माइंड. Marking scheme, after I'll explain all these points, I will explain the marking scheme also. Objectives, it should include 2 points at least which clearly state the benefits the receiving and the giving end will receive. देखो, being the school head or science club president, आप किसी भी मतलब पोस्ट दी जा सकती है आपको क्वेश्चन में, लाइक यू आर द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, यू आर द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, और यू आर द साइंस प्रेसिडेंट, और आपको एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवानी है, तो आपको कुछ भी बनाया जा सकता है उस क्वेश्चन में. तो बीइंग दैट पर्सन आपको ये बताना है कि अगर आप ये प्रपोजल लिखते हैं या अगर आप ये चीज़ स्टार्ट करवा रहे हैं स्कूल में, तो आपको क्या बेनिफिट होगा उससे एज स्टूडेंट. मतलब आपका मतलब है आप पूरे स्टूडेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा उसमें, और जो स्कूल है उसको क्या बेनिफिट होगा. आपको दोनों ही तरफ से पॉइंट सोचकर ये ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं. द ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी क्लियर सो दैट द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन थिंक ऑफ कंसिडरिंग योर प्रपोजल. आपके प्रपोजल को के ऊपर वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए. इस टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. ये प्रपोजल राइटिंग ना कंपनीज़ में बहुत चलती है. कंपनीज़ में अगर आपको कोई भी अपना मतलब न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट करवाना है, तो आपको उसके लिए प्रपोजल देना होगा. डिफरेंट पीपल आर आस्क्ड टू मेक द प्रपोजल, और वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करती है. सो वट एवर यू आर लर्निंग हियर इन स्कूल, दिस विल श्योरली हेल्प यू इन योर लॉन्ग रन. नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ मेजर्स. It should at least contain 4 points. I have written the word at least because यहाँ पर 4 points के 4 marks हैं. And if the examiner by chance considers one of your point wrong, तो at least उसके आपके पास एक और point होगा marks gain करने के लिए. मान लीजिए आपने 4 points लिख लिए, उसमें से सेकेंड पॉइंट एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा एंड ही हैज़ कट द पॉइंट, तो अब आपको सिर्फ 3 points के मार्क्स मिलेंगे. बट इफ़ यू हैव रिटन 5 points, तो एटलीस्ट आपका जो 5th पॉइंट है वो 4th कंसिडर हो जाएगा एंड यू विल गेन द मार्क्स. व्हेन, वेयर एंड हाउ. आई होप यू रिमेंबर नोटिस राइटिंग ऑफ क्लास 9th and 10th. तो इसी तरह 11th and 12th में भी आपको ये लिस्ट ऑफ मेजर्स में व्हेन, वेयर एंड हाउ और whom भी कहीं कहीं इंक्लूड हो सकता है. दीज क्वेश्चंस शुड बी आंसर्ड. जब भी आप लिस्ट ऑफ मेजर्स लिखें, रफ में एक बार अपने पास ये पॉइंट्स नोट कर लें कि एटलीस्ट दीज पॉइंट्स यू हैव टू इंक्लूड. Try to include all the possible points and go in a chronological manner. This is very important. I've seen students who write anything wherever they want. कि मतलब पहले उन्होंने स्टूडेंट से कंसेंट ले ली, फिर उन्होंने स्टूडेंट से अमाउंट ले लिया कि इतना अमाउंट आपको देना है इस क्लब का मेंबर बनने के लिए, और फिर उसके बाद आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पर कौन से रूम में आप ये करेंगे. तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि कौन से रूम में कब आप ये क्लब, अगर मान लीजिए कोई क्लब है या कोई विंग स्टार्ट करवा रहे हैं, तो स्कूल के कौन से पार्ट में आप ये स्टार्ट करवाएंगे, कब ये प्रोग्राम होना चाहिए, लाइक ऑन सैटरडेज़ या आफ्टर द स्कूल. तो ये सब पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में ही लिखने हैं, और उसके बाद आप स्टूडेंट की कंसेंट पर आएंगे, और उसके बाद आप उनसे मेंबरशिप फ़ी की बात करेंगे इफ़ यू वांट टू चार्ज. अदरवाइज इट कैन बी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो. And the most important point is use polite words such as may. ये may वगैरह वर्ड्स, पोलाइट वर्ड्स आप यूज़ करने की हैबिट डालें. ऑल्दो आई नो यू डोंट हैव हैबिट, बट स्टिल ट्राई टू यूज़ पोलाइट वर्ड्स एटलीस्ट हेयर इन द प्रपोजल. क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपनी एरोगेंस दिखाएंगे दैट वी विल अपॉइंट दिस टीचर एज द हेड और द सुपरवाइजर ऑफ दिस क्लब, तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रेफरेबली द प्रिंसिपल को ये लगेगा कि ठीक है, आपने तो सोच लिया है ना दैट यू विल अपॉइंट, तो भाई आप हमसे क्यों परमिशन ले रहे हैं इसके लिए.
तो थोड़ा सा यहाँ पर अपनी पोलाइटनेस दिखा दीजिए, सो दैट योर मार्क्स कैन नॉट बी डिडक्टेड, और पढ़ने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा, ठीक है। सो कंक्लूजन, अब इसके बाद आता है कंक्लूजन। ऑल्दो कंक्लूजन के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगेन इट हैज़ टू बी रिटन इन अ पोलाइट मैनर. You can write, we hope that our proposal will be considered. We are looking forward for the consideration of our proposal. इस तरह से आप लिख सकते हैं. Write your name and designation so that the receiver may know about the person concerned who is writing the proposal. Again, name और designation के कोई marks नहीं होते हैं, लेकिन I would recommend you कि आप अपना name और designation जो भी आपको question में दे रखी है, डू नॉट राइट योर ओन नेम. अगर नेम नहीं दे रखा तो आप इमेजिनरी नेम लिख सकते हैं, लेकिन डेजिग्नेशन जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है वही आप लिखेंगे, इमेजिनरी नहीं लिखेंगे. तो आप ये लिख सकते हैं. और ये इससे बेनिफिट ये होगा कि जो रिसीवर है, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिसको आप ये प्रपोजल प्रेजेंट करेंगे, उसको पता चल जाएगा कि आप कौन है, किसने ये प्रपोजल दिया है. ओके, नाउ लेट अस कम टू द मार्किंग लिस्ट. हेडिंग एंड इंट्रोडक्शन 2 मार्क्स के. हेडिंग और इंट्रोडक्शन अगर आपने सही लिखा है, इंट्रोडक्शन के 2 पॉइंट्स इसमें आप समझ लीजिए. 1 मार्क हेडिंग और 1 मार्क इंट्रोडक्शन लिख दीजिए. हाफ मार्क फॉर ईच पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन. यू विल गेट 2 मार्क्स हियर. अगेन लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और द ऑब्जेक्टिव्स 2 मार्क्स. लिस्ट ऑफ मेजर्स 4 मार्क्स. दिस आई हैव टोल्ड यू कि लिस्ट ऑफ मेजर्स में 4 पॉइंट्स लिखेंगे आप, उसके 4 मार्क्स होंगे. एंड आई एम रिकमेंडिंग यू टू राइट 5 पॉइंट्स. So that if one point the examiner does not consider appropriate, then you can have another 1 point which can help you in gaining marks. Then 2 marks are of linguistic ability. और इतना मैं आप लोगों से अब उम्मीद कर सकती हूँ क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट से कि ICSE बोर्ड के होने के बाद आप एटलीस्ट इतनी इंग्लिश तो सही लिख सकते हैं ना कि 150 वर्ड्स में आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें. और बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, कोई बहुत टिपिकल सेंटेंसेस नहीं है कि कब आप स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, ये सब वर्ड्स ही आपको लिखने होते हैं. तो यू कैन ईजिली राइट दिस. ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या क्या वर्ड्स उसमें लिखने होते हैं. लाइक हेडिंग, आप हेडिंग नहीं डालेंगे, आपको सिर्फ वो अपना जो आप भी लिखना चाह रहे हैं ना, टाइटल जो लिखना चाह रहे हैं, दैट हैज़ टू बी रिटन. HEADING, ये हेडिंग वर्ड आप नहीं लिखेंगे. इसके बाद इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे. इंट्रोडक्शन लिखकर डैश करके आप उस इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट्स लिखेंगे, जो पैराग्राफ होगा. 2 पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होंगे. इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे. लिस्ट ऑफ मत लिखिए आप, बस ऑब्जेक्टिव्स लिखिए. और ऑब्जेक्टिव्स में आगे डैश लगाकर आप ऑब्जेक्टिव वाला पैराग्राफ लिख देंगे, जिसमें फिर से 2 पॉइंट्स होंगे. इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ मेजर्स, ये भी आप लिखेंगे. और इसके बाद लिस्ट ऑफ मेजर्स आप 4 पॉइंट्स में लिखेंगे, ये पैराग्राफ में नहीं लिखा जाएगा. इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स पैराग्राफ में लिखा जाएगा, लिस्ट ऑफ मेजर्स पॉइंट्स में लिखे जाएंगे. इसके बाद है लिंग्विस्टिक एबिलिटी. लिंग्विस्टिक एबिलिटी मीन्स द ग्रामेटिकल मिस्टेक, द वोकैबुलरी यू आर यूजिंग, विच आई हैव टोल्ड यू, यूज पोलाइट वर्ड्स. ओके, तो आप ये लिंग्विस्टिक एबिलिटी पर ध्यान देंगे आप. सो दिस मेक्स टू टोटल ऑफ 10 मार्क्स. It is not at all difficult. I know you can write it. थोड़ा सा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, you will be able to gain full 10 marks. Here is one specimen given by boards for proposal writing. Let's read the question. As a member of the student council of your school, you have been given the responsibility of setting up a science club. Write a proposal in about 150 words, stating the steps you would take to successfully establish this particular club. तो अब देख लो यहाँ पर क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है. प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ साइंस क्लब, मतलब हेडिंग जो टाइटल था, उन्होंने वो वर्ड टाइटल नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने सिर्फ टाइटल लिखा है जो कि कैपिटल लेटर में है. क्लियर? आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्शन में टू फोस्टर इंटरेस्ट इन साइंस आउटसाइड द क्लासरूम, ये 1 पॉइंट हो गया. इसके बाद सेकंड पॉइंट इन्होंने लिखा है एंड इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द वंडर्स एंड रेलिवेंस ऑफ साइंस इन आवर लाइव्स. इसके बाद इन्होंने लिखा है वी प्रपोज टू सेट अप अ साइंस क्लब इन स्कूल. इसमें हर एक पॉइंट आपका इंक्लूड हो गया.
टू फॉस्टर एन इंटरेस्ट, टू डेवलप, टू एनकरेज एन इंटरेस्ट इन साइंस, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द वंडर एंड रेलिवेंस ऑफ साइंस, ये सेकेंड पॉइंट हो गया आपका इंट्रोडक्शन का। इसके आगे इन्होंने ये वर्ड लिखा है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी प्रपोज टू सेट अप अ साइंस क्लब इन स्कूल, ये प्रपोज वर्ड आपको इसमें लिखना है। आफ्टर दिस, objectives. A science club will help students overcome their phobias regarding science. It will be instrumental in developing the scientific curiosity of students through its activities and programs. अब यहाँ पर भी आपके दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये overcome their phobias regarding science, और उसके बाद सेकेंड पॉइंट है it will be instrumental in developing the scientific curiosity of students through its activities and programs. तो ये दो पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। अगेन यू कैन सी इंट्रोडक्शन भी पैराग्राफ फॉर्म में है और ऑब्जेक्टिव्स भी पैराग्राफ फॉर्म में है। उन्होंने इंट्रोडक्शन वाला वर्ड लिखा है इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स वाला वर्ड ऑब्जेक्टिव्स लिखा है। नाउ लेट्स कम टू लिस्ट ऑफ मेजर्स। इन्होंने 5 पॉइंट्स दिए हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू राइट 5 पॉइंट्स एंड प्लीज कीप द वर्ड लिमिट इन माइंड। वर्ड लिमिट 150 वर्ड से आप ज़्यादा आपकी ना हो। मिनिमम 4 पॉइंट्स, 4 मार्क्स, इसलिए इन्होंने भी मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखा है कि अगर आपका एक पॉइंट गलत हो जाता है यू आर ऑलवेज इन सेफर जोन, कि आपका नेक्स्ट पॉइंट जो 5th पॉइंट है उसको 4th कंसिडर कर लिया जाएगा। आफ्टर दिस conclusion, we hope that the proposal will be accepted so that the science club becomes a reality in the life of the school or in the life of the students. Anything you can write. We hope, उन्होंने hope लिखा है, ठीक है। होप अगेन यहाँ पर आपकी पोलाइटनेस को दिखा रहा है। लिंग्विस्टिक एबिलिटी मीन्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, योर वोकैबुलरी कंटेन्स 2 marks and total it becomes of 10 marks. Boards has also given an important note. It is suggested that while writing a proposal, the students provide an apt title, appropriate title, a heading that is an introduction of about 2 sentences, a minimum of 2 objectives. Again, अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है तो आपका वो थर्ड ऑब्जेक्टिव सेकंड कंसिडर कर लिया जाएगा। And a list of measures of a minimum of 4 points. The proposal should be concluded with an appropriate sentence. Conclusion का appropriate sentence होना चाहिए। Although इसका कोई अलग से मार्क्स नहीं होते हैं conclusion वाले sentence के, लेकिन आपको conclude करना है एक appropriate sentence से। 2 marks will be awarded for linguistic ability. ये हो सकता है कि अगर आपने conclusion नहीं करा तो linguistic ability के जो 2 marks हैं उसमें से कहीं ना कहीं कोई हाफ मार्क वो डिडक्ट कर सकते हैं उसका, ठीक। So here I am providing you a question for practice. You can note it down, solve it, and you can get it checked by your concerned teachers. As the president of the student council of ABC school, you have been asked to organize an art and craft fair, the amount collected from which will be donated to nearby orphanage. Write a proposal in not more than 150 words stating the steps you would like to take to make it a success. So this is the question. Keep in mind the points I have told you in this video and write a proposal for this, and you can get it checked by your teachers. So this was all in the video. I hope you have understood it. Keep practicing, keep working hard, and you can surely get good marks. Take care.